रहीमकर पूरा नाम ହେଉଛି ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖାନ ଖାନା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1556 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଆକବରଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ବୈରମ ଖାଁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଶାହୀ ମହଲରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ ବିତିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟର ସୁବେଦାରୀ ମିଳିଲା। ଆରବୀ, ଫରାସୀ, ତୁର୍କୀ, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ ଆଦି ଭାଷାରେ ରହିମଙ୍କର ଭଲ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲେ। ସେ ଦରବାରର ଶାହୀ ଠାଣି ଦେଖିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବଭାବ ନଥିଲା। ରହିମ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସହୃଦୟ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ବୀର ଏବଂ ଦାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମଭାବ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୋହାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁଭୂତିର ଗଭୀରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଭକ୍ତି, ନୀତି, ବୈରାଗ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଗାର ପରି କଥା ସବୁ ତାଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ରହିମଙ୍କ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରହିମ ରତ୍ନାବଳୀ, ରହିମ ବିଳାସ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଟେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରହିମଙ୍କର ଦୋହାକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା। ତରୁଅର ଫଲ नहीं खाते हैं, सरवर पिया ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷ ନିଜର ଫଳ ନିଜେ ଖାଏ ନାହିଁ, ସରୋବର ବା ପୁଷ୍କରଣୀ ନିଜର ଜଳ ନିଜେ ପାନ କରେ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ଆଉ ପୁଷ୍କରଣୀ ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନିଜର ଫଳ ଓ ଜଳକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଫଳ ଅନ୍ୟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇ ଅନ୍ୟକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ନିଜର ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି, କାରଣ ପରୋପକାର ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଆଉ ଏହା ମହାପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ରହିମନ ଦେଖି ବଡ଼େନ କୋ ଲଘୁ ନ ଦୀଜିଏ ଡାରି, ଜहाँ କାମ ଆवे ସୁଇ କାହା କରେ ତଲୱାରି। କବି ରହିମ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଦୋହା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ବା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମାଜରେ ଉଭୟଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରହିମ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଞ୍ଚିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତରବାରୀ ଥିଲେ ବି ତାହା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଛୁଞ୍ଚି ଓ ତରବାରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମେ ସମାନ ଆଦର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ରହିମନ ପର ଉପକାର କେ କରତ ନ यारी बीच, ମାଂସ ଦିଏ ସିବି ଭୂପନେ, ଦିହ୍ନି ହାଡ଼ ଦଧିଚି। କବି ରହିମ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୋହାରେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ମିତ୍ରତା ରହିଛି ସେଠାରେ ଆମେ ପରୋପକାର କରିବା, ବରଂ ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆମେ ପରୋପକାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ରାଜା ଶିବି ନିଜର ମାଂସକୁ ଅପରିଚିତ ବାଜ ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଋଷି ଦଧିଚି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ନିଜ ଅସ୍ଥି ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ବଜ୍ର ବନା ହେଲା ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ମରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଋଷି ଦଧିଚିଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଶା ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କର କେବଳ ପରୋପକାର କରିବାର ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରାଜା ଶିବି ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର, ଯେ କି ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ରାଜା ଥିଲେ। ଏକଦା ଗୋଟିଏ ବାଜପକ୍ଷୀ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାରା ରାଜା ଶିବିଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା, ଆଉ ରାଜା ପାରାଟିକୁ ଶରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ବାଜପକ୍ଷୀଟି ପାରାର ପିଛା କରି କରି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ନିଜର ଆହାର ପାଇଁ ରାଜା ଶିବିଙ୍କୁ ପାରାଟିକୁ ମାଗିଲା। ପାରା ବଦଳରେ ରାଜା ବାଜପକ୍ଷୀକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଜପକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପାରାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ମାଗିଲା ଆଉ ଶେଷରେ ରାଜା ନିଜ ଶରୀରର ମାଂସ ବାଜପକ୍ଷୀକୁ ଦେଇ ପାରାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଋଷି ଦଧିଚି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ରାସୁର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅସ୍ଥି ଦାନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଋଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ଅସ୍ଥିରୁ ବଜ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେହି ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ରାସୁରକୁ ମରାଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ କବି ରହିମଙ୍କର ଦୋହାଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଭାବଗର୍ଭକ, ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିମଙ୍କର ଏହି ଦୋହାଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କେତେକ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା। ତରୁଅର ବୃକ୍ଷ, ଖାତ ଖାଇବା, ସରୋବର ସରୋବର,
पियहि पीवा, पान पाणी, पर पर, काज କାର୍ଯ୍ୟ, हित हित ବା ମଙ୍ଗଳ, ସଞ୍ଚୟୀ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଧନ, ସୁଜାନ ଭଲ ଲୋକ, ଲଘୁ ଛୋଟ, ଡାରି ଫିଙ୍ଗିଦେବା, ସୁଇ ଛୁଞ୍ଚି, ତଲୱାରି ତରବାରୀ, ୟାରି ବନ୍ଧୁତା, ଭୂପ ରାଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2-3 वाक्य रे दियंतु। क, तरुवर और सरवर क्या करते हैं? वृक्ष एवं पुष्करणी कौन करती? तरुवर अपना फल नहीं खाता और सरोवर अपना जल नहीं पीता। तरुवर अपने फलों से दूसरों के भूख मिटाता है और सरोवर अपने जल से दूसरों के तृषा मिटाता है। तरुवर और सरोवर अपने फल और जल दूसरों के लिए संचित करके परोपकार करते हैं। ख, सीवी राजा ने क्यों मांस दान दिया? सीवी राजा काहेकि निज शरीर मांस दान देले? एक बार एक बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर ने राजा सीवी के शरण में आई। भूखा बाज पक्षी उसके पीछे पीछे आकर राजा सीवी से अपना आहार मांगा। शरणागत कबूतर की जान बचाने के लिए राजा सीवी ने भूखे बाज को अपना मांस दान दिया। ग, छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। क्यों? छोटों मानकर अवहेला करवा उचित नुहे। काहेकि? छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाज में छोटे और बड़े दोनों का अलग अलग तथा स्वतंत्र महत्व होता है। जो काम एक छोटी सी सुई के द्वारा किया जा सकता है वह काम तलवार के द्वारा नहीं किया जा सकता। घ, ऋषि दधीची ने किस लिए हाड़ या अस्थि दान दिया था? ऋषि दधीची केउंथिपाई निजर अस्थि दान देथिले? वृत्रासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस के आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया था। उसे मारकर देवताओं का रक्षा करने के लिए ऋषि दधीची ने अपनी अस्थि दान दिया था। ऋषि दधीची की अस्थियों से वज्र बना और उस वज्र से वृत्रासुर मारा गया। प्रश्न 2, निम्नलिखित अवतरणों का आशय 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित अवतरण गुड़िकर भावार्थ 2-3 वाक्य स्पष्ट करंतु। क, तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पियहि न पान। तरुवर अपना फल नहीं खाता और सरोवर अपना जल नहीं पीता। तरुवर अपने फलों से दूसरों के भूख मिटाता है और सरोवर अपने जल से दूसरों के तृषा मिटाता है। तरुवर और सरोवर अपने फल और जल दूसरों के लिए संचित करके परोपकार करते हैं। ख, जहाँ काम आवेश हुई कहा करे तरवारी। कवि रहीम जी का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए क्योंकि समाज में छोटे और बड़े दोनों का अलग अलग तथा स्वतंत्र महत्व होता है। इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जिस काम के लिए एक छोटी सुई की जरूरत होती है वहाँ तलवार काम नहीं आता। ग, मांस दियो सीवी भूप ने दिन्हों हाड़ दधीची। एक बार एक बाज पक्षी से डरकर एक कबूतर ने राजा सीवी के शरण में आई। भूखा बाज पक्षी उसके पीछे पीछे आकर राजा सीवी से अपना आहार मांगा। शरणागत कबूतर की जान बचाने के लिए राजा सीवी ने भूखे बाज को अपना मांस दान दिया। वृत्रासुर नामक एक बड़ा पराक्रमी राक्षस के आतंक से स्वर्ग में हाहाकार मच गया था। उसे मारकर देवताओं को रक्षा करने के लिए ऋषि दधीची ने अपनी अस्थि दान दिया था। ऋषि दधीची की अस्थियों से वज्र बना और उस वज्र से वृत्रासुर मारा गया। इस तरह सीवी भूप और ऋषि दधीची ने परोपकार के लिए अपना मांस और अस्थि दान दिया था। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में दीजिए।
निम्नलिखित प्रश्नଗୁଡ଼ିकर उत्तर गोटिए गोटिए वाक्य दियंतु। क तरुवर क्या नहीं खाता है? वृक्ष कौन खाए नहीं? तरुवर अपना फल नहीं खाता है। ख सरवर क्या नहीं पीता है? सरोवर कौन पिए नहीं? सरवर अपना पानी नहीं पीता है। ग सुजान किस लिए संपत्ति का संचय करता है? भलो लोक माने केउथिपाई निज संपत्ति संचय करती। सुजान दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचय करता है। घ बड़े लोगों को देखकर लघु का क्या नहीं करना चाहिए? बड़ लोक मानंकु देखी करी लघु मानकर बा छोट लोक मानकर कौन करवा उचित नुहे। बड़े लोगों को देखकर लघु का अनादर करना या लघु को छोड़ देना नहीं चाहिए। वह सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम होगा या नहीं? चुंची स्थान रे जदि एक तरबारी मिलजिब तो काम हेबो ना हेबो नहीं। सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम नहीं होगा। च परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? परोपकार करने समय कौन जरूरी नुहे? परोपकार करते समय दोस्ती या मित्रता जरूरी नहीं है। 6 सीवी भूप ने क्या दान दिया था? सीवी राजा कौन दान देथिले? सीवी भूप ने अपने शरीर से मांस काटकर दान दिया था। ज किसने अपनी हड्डियों का दान दिया था? किए निज हाड़ गुड़िक दान देथिले? ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दिया था। भाषा ज्ञान प्रश्न 1 नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर खड़ी बोली रूप लिखंतु। एटार शब्द गुड़िक रही नहीं, सरवर, पिय, पान, तलवारी, काच। यही शब्द गुड़िकर खड़ी बोली रूप वर्तमान आम लिखा। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखंतु। पर, नीच, हित, अहित, सुजान, दुर्जन, बड़ा, छोटा, लघु, गुरु, उपकार, अपकार। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर समानार्थक शब्द लिखंतु। सरोवर, तालाब, तरु, वृक्ष, पान, पानी, संपत्ति, धन, सुजान, सज्जन, लघु, छोटा, तलवारी, खड्ग, भूप, राजा, यारी, दोस्ती, हाड़, अस्थि। प्रश्न 4 निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर लिंग निर्णय करंतु। फल पुल्लिंग, संपत्ति स्त्रीलिंग, सुई स्त्रीलिंग, तलवार स्त्रीलिंग, मांस पुल्लिंग। प्रश्न 5 को परसर का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाइए। को परसर्गर प्रयोग करी 5टी वाक्य बनातु। एठारे उदाहरण रही राम को किताब दो। सेहीपरि आमे आउ 5 गोटी वाक्य लिखिबा। बच्चों को मिठाई दो, बिटिया को गुड़िया दो, मोहन को कलम दो, दादाजी को चश्मा दो, गाय को घास दो। आशा करुछि भिडियोटी आपण मानक पई निश्चय उपयोगी होई परिबो। भिडियोटी भलो लागिले एहाकु लाइक एवं शेयर निश्चय करंतु। एहा सहित मोर यूट्यूब चैनल पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन को नुआ करी विजिट करथिले। चैनल अपडेट नोटिफिकेशन पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करबा सह बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। लव यू ऑल।